Good morning, students. Today is the first class of labor costing और labor cost accounting technique. पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था थोड़ा सा प्रीवियसली डिस्कशन करवा देते हैं, फिर हम लोग कहां से शुरू करेंगे? लेबर कॉस्ट से शुरू करवाएंगे. पहले देखो, इन ए प्रोडक्ट there are three types of cost is there. First one is material, second one is labor, next one is expenses, or last one is expenses. Is that okay? So out of these three, the main part is material, because around 70 to 75% of total cost of a product is in total output of material. इसका मतलब सोच लो, अगर मेरा प्रोडक्ट 100 रुपीस का है तो उसमें मेरा 70 to 75 rupees क्या रहेगा? Material रहेगा. Is that okay? Next part is my labor. So when it is in total cost of 100 rupees of an output of product, it will around 20 to 25% of cost is our labor cost. So the second most important cost of an product is labor. Is that okay? What I am telling to you. The first most important part of a product is material, no doubt, because it is having 70 to 75% of an cost of a product. But labor is the second most important part. What I am telling to you, second most important part for forming an output. Is that okay? And remaining will be expenses. The expenses is last one but not least one. Is that okay? So in this class, we will all discuss about labor cost, how labor cost can be calculated, what is a normal labor cost, what is abnormal labor cost, what do you mean by labor cost losses, और हम लोग को labor cost losses में क्या बोलेंगे? The proper word will be used. Labor hour losses will known as idle time. Is that okay? हम लोग एक एक वर्ड को डिस्कस करेंगे. Is that okay? थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं. तो मैंने क्या बोला? Out of which a product having rupees 100 bills segregated into three parts. The first part is 70 to 75% of material, 20 to 25% of labor, around 5 to 10% of expenses. हम लोगों ने और वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड क्लियर एवरीथिंग अबाउट मटेरियल. मटेरियल क्या होता है, मटेरियल लॉस क्या होता है, मटेरियल कंट्रोल करने के लिए टेक्निक क्या होता है, हम लोग ऑलरेडी ये सब कवर अप कर चुके हैं. इज दैट ओके? क्लियर? सो इट इज द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड इट इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. Are you getting my point? Labor is the second most important part of a product. Is that okay? So after material, we have to focus on labor for minimizing cost. याद करो, आप लोग को मैंने क्या बताया था? The cost you saved will gain. The cost you saved will increase your profit or increase your gain. तुम लोग कॉस्ट में जितना सेव करवाओगे वहां तुम्हारा प्रॉफिट उतना बढ़ जाएगा. तो पहले हमको किसको कंट्रोल करवाना पड़ेगा? मटेरियल, बिकॉज इट इज द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट. सेकंड में हमको लेबर तक क्यों आएंगे? तुम बोलोगे सर एक्सपेंसेस कंट्रोल नहीं करवाएंगे. बाप पहले क्या कर, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट लेबर है, तो लेबर को कंट्रोल करवा, फिर एक्सपेंसेस को कंट्रोल कैसे करवाएंगे वो सब चीज हम लोग आएंगे. ओके, क्लियर? लाइकवाइज डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, direct labor, indirect labor, direct expenses, indirect expenses. आप लोग को याद होगा, the indirect combination of these three is known as overhead. याद है ना आप लोग को? तो हम लोग आज क्या करेंगे, पूरा लेबर के ऊपर डिस्कशन करेंगे. डायरेक्ट लेबर क्या होता है, इनडायरेक्ट लेबर क्या होता है, डायरेक्ट लेबर का ट्रीटमेंट क्या होगा, क्या करना चाहिए, ये सब चीज है इस क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे. ओके, नेक्स्ट वन देखो. Labor cost. So what do you mean by labor cost? The amount of expenses or
मनी, द अमाउंट ऑफ मनी लिख लो, सही रहेगा, द अमाउंट ऑफ मनी और money's worth provided to a labor is known as labor cost. मैंने क्या बोला, थोड़ा अच्छे से फोकस करवाओ. the amount of money or money's worth provided to a labor is known as labor cost. इसका मतलब इन कंपोनेशन, और हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़े होंगे कंसिडरेशन. व्हाट डू यू मीन बाय कंसिडरेशन? समथिंग इन रिटर्न. मेरा एम्प्लॉय मेरे लिए कुछ काम कर रहा है, मैं उसको रिटर्न में कुछ चीज दे रहा हूं. सो दिस थिंग इज नोन एज लेबर कॉस्ट. इज दैट ओके? समझ में आ रहा है ना आप लोग को? सो देयर आर टू कंपोनेंट्स. वन इज मनी, second one is money's worth. Is that clear? So money or money's worth, I will focus on two words: money, money's worth. So in case of money, they will get monetary benefit from me. Likewise wages और salary. आप लोग को डिफरेंस पता है दोनों का? wages and salary. जनरली वेजेस इज ऑन डे टू डे बेसिस. देखो हम लोग बोलते हैं कि वेजेस एंड सैलरी, ये जनरली क्या होता है, फिजिकल वर्क के लिए हम लोग वेजेस लेते हैं, रिमेनिंग वर्क के लिए सैलरी लेते हैं. ये एकदम सही है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बट द प्रॉपर 100% डेफिनेशन इज वेजेस इज ऑन बेसिस ऑफ डे टू डे वर्कर एंड सैलरी इज ऑन बेसिस ऑफ मंथली और सम क्वार्टरली बेसिस और समथिंग एल्स. जहां डेली डेली पैसा मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेजेस. कब कहां लिखा है कि फिजिकली वर्क मिलता है? दोनों सही है. इज दैट ओके? बट सैलरी का मतलब क्या होता है कि दो एक्सपेंसेस आर हैविंग सम मेंटल एक्सपीरियंस. मैं जो चीज ले रहा हूं, आई एम गेटिंग सम सैलरी फ्रॉम माय इंस्टीट्यूशन, आई एम नॉट गेटिंग सम वेजेस फ्रॉम माय इंस्टीट्यूशन. इज दैट ओके? दोनों का मतलब सही है. लाइकवाइज इट इज इन फॉर फिजिकल वर्क और डे टू डे बेसिस. दिस वन इज फॉर मंथली बेसिस और सम टेक्निकल पार्ट बेसिस. इज दैट ओके? क्लियर? So any wages and salary, any PF provident fund, any ESI employee state insurance, any benefits or monetary benefits, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉनेटरी बेनिफिट को फ्रिंज बेनिफिट. मतलब कंपनी हम लोग को कब कब क्या बोलता है कि तू भाई एक काम कर, तेरा वर्किंग आवर है 8 आवर्स, तो पूरा 8 घंटा काम मत कर, टेंशन हो जाएगा. फैटिक स्टडी, तुम लोग साइंटिफिक स्टडी में बोलोगे 4 टाइप का स्टडी होता है: मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फैटिक स्टडी और एक क्या होता है रे? मूवमेंट स्टडी. 4 स्टडी होता है. तो जो भी स्टडी होता है, ये जो एक होता है फैटिक स्टडी, वो बोलता है भाई तू सुन, तू 4 घंटा काम करेगा, 8 घंटा काम करेगा, मैं तुझे 8 घंटा एक ही प्लेस में बिठाऊंगा, तेरा दिमाग खराब हो जाएगा. 4 आवर के बाद तो हाफ एन आवर का एक ब्रेक ले ले. वो जो ब्रेक टाइम होगा उसमें कुछ खर्चा वर्चा कर, चाय भाई पी, कुछ कैंटीन में जाके खा, और कैंटीन का बिल मैं तुझे नहीं दूंगा, उसके लिए तेरे सैलरी में एक दिन का 15 रुपया या 20 रुपया मैं तुझे एक्सपेंसेस दे दूंगा. दिस विल बी नोन एज मॉनेटरी बेनिफिट. व्हेन आई विल गिव एनी टी, मैं क्या कर रहा हूं, ऑफिस में बोला कि भाई मैं तुझे पैसा नहीं दूंगा, तू क्या कर, ऑफिस को कैंटीन में जा, जितना चाय पीना है पी, जितना बिस्किट खाना है खा, सब कुछ एंजॉय करके आ. इसको हम बोलते हैं मॉनेटरी और मनीज वर्थ. इसको हम क्या बोलते हैं? परक्यूजाइट. ओके, इनकम टैक्स लैंग्वेज में स्पेशली ये वर्ड यूज होगा. ये आएगा फ्रिंज बेनिफिट, ये आएगा परक्यूजाइट. समझ में आ रहा है? सो एनी इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वर्थ, like anything or any car is provided to an employee of an organization for transportation or for convenience purpose, so it is known as monetary worth. When the company is providing rupees 100 for taxi rent, it will be coming under money or wages salary. मतलब सिंपल सा चीज है, कंपनी जो चीज हमको दे रहा है वो 2 वे में देगा. फर्स्ट वन इज पैसा दे देगा, तो अपने हिसाब से खर्चा कर, नहीं तो इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ वर्क, इन टर्म्स ऑफ समथिंग एल्स.
डायरेक्ट कन्वीनियंस के लिए गाड़ी दे देगा, एक बाइक खरीदेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, मनी वर्थ और परक्यूजाइट. सो ऑलवेज द एम्प्लॉय इज गेटिंग two types of benefit. One is directly from money, second one is money's worth. When calculation of labor cost will be done, we have to consider both the thing. Generally मनीज वर्थ और परक्यूजाइट्स को लोग बोलते हैं कि ये तो भाई हम सैलरी में कैलकुलेशन नहीं करेंगे, तो ये नहीं होता है. सोच लो मेरा ऑफिस में और मेरा एक दोस्त का शादी हुआ, उसमें एम्प्लॉयर खुश होकर उसको एक फ्री ये दे दिया, क्या है, पैकेज दे दिया कि तू जा किधर बाहर घूम के आ, ओके, और उसको कुछ गिफ्ट दे दिया और उसको एक पैकेज दे दिया तू बाहर जाके घूम के आ. दिस इज टोटली ट्रीटेड एज एन परक्यूजाइट. उसका जहां खर्चा होगा सैलरी में डाल दिया जाएगा. ये बात अलग है कि गिफ्ट ये चीज है, बाद में डिस्कशन करेंगे. बट द होल मनीज वर्थ गिवन टू एन एम्प्लॉय विल ट्रीटेड एज एन मनीज वर्थ एंड इट विल बी एडेड एज एन सैलरी इन लेबर कॉस्ट. मतलब जो भी पैसा और पैसा का वैल्यू एक लेबर के लिए हम लोग खर्चा कर रहे दे रहे, द होल अमाउंट इज कंसिडर्ड अंडर लेबर कॉस्ट. इज दैट ओके? नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज देयर. वन इज अ डायरेक्ट लेबर, सेकंड वन इज इनडायरेक्ट लेबर. डायरेक्ट लेबर क्या होता है, इनडायरेक्ट लेबर क्या होता है, मैंने पहले से ही बता दिया था. when any cost is treated to one specific cost center, then it is known as direct labor. Or direct cost, when it is not treated to one specific labor or specific cost center, is known as indirect cost. Likewise, labor cost is divided into two types. One is direct, second one is indirect. डायरेक्ट का मतलब क्या होता है रे, when it will charge to an specific cost center. Is that okay? When the cost of labor will charge to an specific cost center. मतलब दो चीज है, एक प्रोडक्शन हाउस ए है, बी है, इसका लेबर कॉस्ट है 500, इसका लेबर कॉस्ट है 600. So the 500 rupees is directly charged to A, the 600 rupees is directly charged to B. So the cost of A is rupees 500 and it will be treated as direct cost because the whole amount of 500 is directly charged to A. Okay, again the rupees 600 will be directly charged to B, so that the direct labor cost is rupees 600. Next one is indirect cost. Most important thing, the cost when not able to charge or charged to more than one cost center is known as इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट. मेरे साथ आप भी नोट करते जाओ ये सब चीज. इज इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? जब सोच लो मेरा 2 डिपार्टमेंट है, ए एंड बी. ये सोच लो ये बड़ा बड़ा कमरा है, इसमें 2 डिपार्टमेंट का काम चल रहा है. एक सोच लो डिपार्टमेंट ए है, एक बी है. बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है, सिक्योरिटी गार्ड, उसका सैलरी है ₹1000. मैं इसको 500 इसको चार्ज कर रहा हूँ, इसको 500 चार्ज कर रहा हूँ. So the amount of expenses of this labor is not considered to one single cost or single cost center. So that rupees 1000 is known as indirect labor cost and it must be segregated to the related specific cost center. क्या बोल रहा हूँ अच्छे से सुनो. The whole amount when not segregated or not able to charge to a single cost center, it will create a problem. So the amount of indirect labor must be segregated between more than one employee who will get benefited by this cost. ये बोल रहा है कि भाई अगर तेरे पास 1000 का एक्सपेंसेस आया, तो ये 1000 एक्सपेंसेस ना पूरा ए को चार्ज कर पाएगा ना पूरा बी को चार्ज कर पाएगा. तो तुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों को सेग्रीगेट करना पड़ेगा. जो सेग्रीगेट करने के लिए इसको कुछ देना पड़ेगा, उसको कुछ देना पड़ेगा. सो दोज पीपल विल बेनिफिटेड बाय दिस ₹1000. मेरा इधर सिक्योरिटी गार्ड जग रहा है, मेरा घर पे कुछ काम नहीं हो रहा है, तो मेरे घर का कॉस्ट सेंटर को क्यों चार्ज करूं? नहीं करूंगा. इधर मेरा कॉस्ट सेंटर मेरा है ए, उधर एक कॉस्ट सेंटर है बी. ए को कुछ चार्ज करो,
बी को कुछ चार्ज करो, बात खत्म। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सो द टोटल अमाउंट ऑफ कॉस्ट इनडायरेक्ट लेबर मस्ट बी सेग्रीगेटेड टू द कॉस्ट सेंटर who will get benefited for that। सोच लो मेरा इधर 2 ऑफिस है, नीचे एक स्टोर हाउस है, वेयर हाउस है, ये इधर खड़ा है, तो वेयर हाउस को मैं चार्ज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि सिंपल सा चीज है भाई, द इनडायरेक्ट लेबर इज और द इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट will not any affected or will not give any benefit to the गोडन, because the यहाँ मेरा सिक्योरिटी गार्ड है, वो तो कुछ इफेक्ट नहीं कर रहा है मेरा गोडन को, तो गोडन को मैं चार्ज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि गोडन इज नॉट बेनिफिटेड बाय दिस अमाउंट। 1000 का बेनिफिट गोडन नहीं ले रहा है, ये दोनों ले रहा है, ये दोनों को चार्ज करवाओ। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? तो इसके बाद हमको पढ़ना चाहिए कि डायरेक्ट कैसे कैलकुलेशन करते हैं लेबर। सिंपल सा चीज है, मैंने जो बोला था मनीष और मनीष वर्थ, इतना इतना इसको मिल रहा है, इतना इतना इसका मनीष वर्थ मिल रहा है, टोटल सम ऑफ कर दो, मेरा क्या निकल जाएगा? लेबर कॉस्ट निकल जाएगा। उससे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट चीज में फोकस करना चाहूंगा, व्हाट इज लेबर टर्नओवर रेशियो। लेबर टर्नओवर क्या होता है, इसके बाद हम लोग लेबर कैलकुलेशन इज सो सिंपल। मैं थोड़ा सा डिले करता हूं उसको पढ़ाने के लिए। आज का क्लास मेनली फोकस ऑन लेबर टर्नओवर, कितना टाइप का होता है, क्या होता है, सब चीज हम लोग देखेंगे। ओके, देखो लेबर टर्नओवर क्या होता है। Labor turnover. Okay, what is labor turnover? The change in workforce। पहले सुन लो फिर लिखते हैं हम लोग। लेबर टर्नओवर का मतलब क्या होता है? लेबर टर्नओवर, टर्नओवर मतलब क्या है? चेंज। मेरा एक स्पेसिफिक पीरियड में लेबर का वैल्यू बाय नंबर ऑफ लेबर्स कितना चेंज हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लेबर टर्नओवर। तुम बोलोगे सर अगर लेबर टर्नओवर ज्यादा हो रहा है तो मुझे क्यों पढ़ना चाहिए एलटीआर? देखो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जब लेबर मेरा कंपनी में आता है, two most important thing is done by an specific labor or by an company to the labor। लेबर के लिए कंपनी दो चीज करता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, नेक्स्ट वन इज एन इंडक्शन प्रोग्राम। आप लोग सुने होंगे वेलकम पार्टी जैसे बोलते हैं कॉलेज में एंट्री, क्या एक क्या बोलते हैं इसको, जाने के लिए फेयरवेल बोलते हैं, हाँ वेलकम पार्टी बोलते हैं शायद एंट्री करवाने के लिए, इसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं? तो एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए दो चीज खर्चा करवाता है, वन इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, सेकंड वन इज इंडक्शन। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या होता है? सोच लो मैं पिछले कंपनी में क्या कर रहा था, कुछ काम कर रहा था which is irrelevant to our my company, तो वो फैक्ट्री में और कुछ काम कर रहा था, इधर मेरा फैक्ट्री का टेक्निक कुछ अलग है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये जो मेरा नया बिजनेस है, मैं नया कंपनी का बिजनेस है, उसके हिसाब से मुझे प्रिपेयर करना पड़ेगा, एक्वेंटेड होना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कैसे काम होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेनिंग। ओके क्लियर, समझ में आ रहा है? तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, मुझे क्या करवाना पड़ेगा? ट्रेनिंग पढ़वाना पड़ेगा। ट्रेनिंग के लिए मैं अच्छा अच्छा एचआर मैनेजर को, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को हायर करूंगा, उसको सैलरी वैलरी दूंगा, सब कुछ अच्छे से होना चाहिए। So if training will be good, the output of employee must be good. If training is not good, अगर मुझे पता नहीं है मुझे कैसे करना है, तो मेरा लेबर कॉस्ट ज्यादा आएगा। सुनो, when a labor is not doing better work, his cost is not increased, material cost is also increased। सोच लो मुझे मार्कर प्रिपेयर करवाना था, मार्कर का साइज इतना होना चाहिए 6 to 7 सेमी 10 सेमी होना चाहिए। मैंने जब उसको 10 सेमी स्टार्टिंग पे ले गया, उसको क्या करना चाहिए? 10.65 में कट लगाना चाहिए, तो थ्रोट कट हो गया, अच्छे से रहेगा। वो क्या करेगा? 10 पे ही लगा देगा, तो मटेरियल का मटेरियल वेस्ट भी हो गया, लेबर का उसका लेबर वेस्ट भी हो गया। अच्छे से ध्यान दो, लेबर क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट पे है? बिकॉज ऑफ लेबर कॉस्ट और इन डिफिकल्टी ऑफ लेबर or any problem in labor, the material also will be hampered and the material abnormal cost of material will be increased। because अगर लेबर ने अच्छा काम नहीं किया भाई, लेबर का तो कॉस्ट गया, छोड़ लो उसका कॉस्ट, मेरा मटेरियल का भी कॉस्ट गया। मटेरियल खराब है, मटेरियल का कॉस्ट जाएगा, लेबर खराब है, मटेरियल का कॉस्ट भी जाएगा,
फिर लेबर कॉस्ट भी जाएगा। समझ में आ रहा है ना? थोड़ा सा फोकस डालो दिमाग में। when there is an problem in labor cost, it should create his labor cost along with material cost। material cost का भी लॉस होगा, लेबर का भी लॉस होगा, दोनों का लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए मुझे क्या करवाना पड़ता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करवाना पड़ता है। सोच लो, मैंने एक ट्रेनिंग, मेरा मोबाइल का बिजनेस है, मैं सैमसंग का बिजनेसमैन हूँ। मैंने सैमसंग वालों को लाया, उसको अच्छे से ट्रेनिंग करवाया, एकदम इंडक्शन मतलब क्या होता है रे, the employee should feel like familiar in this business so that he will interested to do something। जब वो आएगा उसको हम इंट्रोडक्शन करवाएंगे कि this one is Mr. X, he is new coming, these people are new coming, this is Mr. Y, this is Mr. Z, this is our HR manager, this is our branch manager। all this we have to get formulated, or simple thing is the all informations regarding our company and business will be provided to the labor in a program is known as induction program। that's all। मेरा कंपनी में कहां क्या हो रहा है, सब इंफॉर्मेशन कुछ क्या करना पड़ेगा, लेबर को देना पड़ेगा, एम्प्लॉय को देना पड़ेगा, तभी वो अच्छे से काम कर पाएगा। उसको पता नहीं होगा मेरा कब किधर कौन सा रूट में बॉस आ रहा है, कब जाना है, कैसा काम करना पड़ेगा, तो दिमाग खराब हो जाएगा उसका। तो इसीलिए मुझे क्या करना पड़ता है, इंडक्शन प्रोग्राम करवाना पड़ता है। इज दैट ओके? समझ में आ रहा है ना आप लोग को? तो इसीलिए ये क्या बोल रहा है कि मुझे जो लेबर कॉस्ट है, ज्यादा से ज्यादा लेबर टर्नओवर कम करवाना, मतलब बहुत कम जितना होगा मेरा लेबर कॉस्ट उतना कम होगा। लेबर टर्नओवर, हाँ मैंने क्या बोला था, सैमसंग का एग्जांपल ले रहा था ना, कैसे इंक्रीज होता है लेबर टर्नओवर, हाउ इंक्रीज द लेबर कॉस्ट, वी विल डिस्कस दैट थिंग। सोच लो मैं सैमसंग का बिजनेसमैन हूँ, सैमसंग का मोबाइल रिपेयर प्रोडक्शन कर रहा हूँ, तो वो सैमसंग का प्रोडक्शन करने के लिए मुझे एक लेबर फोर्स चाहिए। जो लेबर फोर्स चाहिए उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एक डिस्प्ले प्रोडक्शन करवाना पड़ता है, फिर बैटरी को फिक्स करवाओ, फिर कुछ बटन साउंड बटन पावर बटन को फिक्स करवाओ। उसको एकदम अच्छे से ट्रेनिंग दे दिया। फिर ट्रेनिंग जब खत्म हुआ 15-20 दिन के बाद उसको एक अच्छा सा ऑफर मिल गया। किधर से मिल गया? सोच लो, MI से मिल गया, Xiaomi से मिल गया। अगर वो मेरा बिजनेस सैमसंग छोड़ के जा रहा है, तभी दोज ट्रेनिंग एक्सपेंसेस विल बी गो टू हेल्ड। एकदम मेरा खर्चा मतलब खत्म हो जाएगा। वो जो मेरे आई एम डूइंग एनी एक्सपेंसेस ऑन दैट लेबर विल बी लॉस्ट, मेरा सब खत्म हो जाएगा, मैंने उसके ऊपर जितना खर्चा किया। व्हेन द न्यू कमिंग लेबर विल गेट एन एक्स्ट्रा समथिंग, और इसको जो मिलेगा वो MI पे यूज करवा लेगा। तो इसका मतलब मैंने उसको जो ट्रेनिंग करवाया, इंडक्शन प्रोग्राम करवाया, जो जो सैलरी दिया, सब कुछ मेरा क्या होगा, खत्म हो जाएगा। सो फॉर डिक्रीजिंग द लेबर कॉस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू डिक्रीज द लेबर टर्नओवर। अगर मैं लेबर टर्नओवर कम कर पा रहा हूं तो मेरा लेबर कॉस्ट कम होगा, मटेरियल एबनॉर्मल लॉस भी कम होगा। फिर से फोकस डालो, क्योंकि अगर मेरा लेबर सही नहीं है तो मटेरियल ज्यादा खर्चा हो जाएगा। भाई उसको पता नहीं है कैसे काम करना है, डिफेक्टिव ज्यादा आएगा, फिर से खर्चा करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? So the labor cost directly not indicate the labor cost. It also increases the material cost. So it is most important to maintain labor turnover or to minimize the labor turnover. समझ में आया कुछ कुछ चीज? थोड़ा सा लिखते, फिर हम लोग इसके बाद डिस्कशन करेंगे। The change in workforce within a definite period of time is known as लेबर टर्नओवर। एक स्पेसिफिक पीरियड में जितना लेबर वर्कफोर्स चेंज हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेबर टर्नओवर। इट arises due to रिप्लेसमेंट तो नहीं लिखते हैं, सेपरेशन लिखते हैं पहले, सेपरेशन एंड एडिशन ऑफ एन फॉरेन स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। तुम लोग बोलोगे सर ये स्पेसिफिक प्रोजेक्ट कहां से आ गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, सोच लो मेरा 2 प्रोजेक्ट काम चल रहा था, मैंने और एक प्रोजेक्ट हाथ में लिया, 3 प्रोजेक्ट हो गया,
तभी तो मुझे लेबर एडिशन करना पड़ेगा ना, तब भी हम लोग बोलेंगे लेबर टर्नओवर, नहीं बोलेंगे लेबर टर्नओवर, क्योंकि भाई मेरा तो काम भी बढ़ गया ना, 2 प्रोजेक्ट चल रहा था 3 प्रोजेक्ट चल रहा है, तो प्रोजेक्ट जब बढ़ेगा, काम बढ़ेगा, तभी लेबर ज्यादा लाने के लिए हम लोग लेबर टर्नओवर नहीं बोलेंगे। एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए मैंने सोचा था 15 आदमी चाहिए, फिर क्या हुआ 20 आदमी का जरूरत पड़ा, दैट इंक्रीज माय लेबर टर्नओवर। क्यों जरूरत पड़ा? कुछ तो प्रॉब्लम है उसमें, कुछ तो घोटाला है, कुछ इधर छोड़ के चले गए और को काम नहीं कर रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? So the most important is an specific project. एक प्रोजेक्ट के लिए when the project is changes and increase in or addition of number of workforce is increases, then it should not create an labor turnover. दिमाग में फिक्स करके रखो। नेक्स्ट क्या बोल रहा है अच्छे से देखो। The arises due to one separation and addition for an specific project. एक specific project के लिए जो भी खर्चा हो रहा है, if we will not look to our LTR, labor turnover, then it will increases our labor cost, which will directly then it will be increases our labor cost, which will directly increase our cost of production and decreases our profit. ओके, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे? नेक्स्ट पॉइंट ये क्या बोल रहा है? अच्छे सुनो, ये अगर हम प्रॉफिट लेबर ज्यादा होगा, एक्सपेंसेस ज्यादा होगा, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो मेरा लेबर कॉस्ट क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सॉरी लेबर कॉस्ट ज्यादा हो रहा है, इसीलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, तभी मेरा प्रॉफिट क्या होगा? कम हो जाएगा। आई विल रिपीट द सेम सेंटेंस, बिकॉज द एक्सपेंसेस or the amount of cost will be changed, but the sales price will not be changed because of competitive market in India, but out of India anything else, competition market है, इसीलिए मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट वन इज when there will a abnormal labor cost, it will also risk of मटेरियल कॉस्ट। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? कि ऐसा भी मेरा चांसेस है कि अगर मेरा लेबर कॉस्ट अगर एबनॉर्मल हो रहा है तो मटेरियल भी ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सिंपल सा चीज। अभी हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ लेबर टर्नओवर। देखो, पर्सनल कॉज क्या होता है, एबनॉर्मल कॉज क्या होता है, कॉज क्यों लेबर टर्नओवर होता है, 5 मिनट एक काम करते हैं, डिस्कशन करवा देते हैं, फिर नेक्स्ट हम लेबर टर्नओवर कैलकुलेशन पर चलते हैं। देखो, लेबर टर्नओवर क्यों क्यों चलता है? Cause of labor turnover, most important question. Every exam it will ask a single question or 2 marks question from cause of labor turnover. Cause generally cause 2 type का होता है। First one is avoidable cause। सुनो, पर्सनल कॉज भी होता है, इसको हम जनरली अनएवॉइडेबल में डालते हैं। मैं ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू 2 टाइप्स में कर रहा हूं, एवॉइडेबल, अनएवॉइडेबल। कौन सा बुक में आप लोग को पर्सनल कॉज और एक क्लॉज अलग से करवाएगा, पर जरूरत नहीं है। एवॉइडेबल अनएवॉइडेबल ब्रॉड कैटेगरी। ओके, एवॉइडेबल का मतलब क्या है? व्हेन एन एम्प्लॉयर wants to decrease his labor turnover, he may avoid the problems of employee
so that LTR will not increase। ये बोल रहा है ये जो कॉज है बा हम लोग जो चीज पढ़ेंगे यहाँ एवॉइडेबल कॉज है, तो इसको क्या कर पाएगा, एवॉइड कर पाएगा। अनएवॉइडेबल का मतलब क्या है, एम्प्लॉयर कितना भी करे क्या भी करे ये एवॉइड नहीं कर पाएगा, सिंपल सी बात। या क्या बोला, कैन बी एवॉइडेड, कैन नॉट बी एवॉइडेड। इसमें जनरली पर्सनल क्लॉज इंक्लूड होके आ जाता है। ओके, नेक्स्ट वन, एवॉइडेबल का पहला पॉइंट है कि हम लोग किसको एवॉइड कर पाएंगे, विद सैटिस्फैक्शन। उसका सैलरी सैटिस्फैक्शन नहीं है, सबसे बड़ा रीजन है लेबर टर्नओवर का। उसका सैलरी सैटिस्फैक्शन नहीं है तो तभी क्या कर पाएगा, मेरा कंपनी छोड़ देगा। सो वेदर इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉयर, और एम्प्लॉय के पास उतना पावर है, उतना उसके हाथ में है, तो क्या करना चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए। ये अवॉइड करेगा तो लेबर टर्नओवर कम हो जाएगा, ये मेरा कंपनी छोड़ के नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फर्स्ट वन इज विद सैटिस्फैक्शन, नेक्स्ट वन इज वर्किंग कंडीशन। क्या होता है वर्किंग कंडीशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दे। सोच लो अब जरा मेरा बिजनेस का ट्रांजैक्शन चल रहा है, बट ट्रेंड चल रहा है, आदमी पैसा के पैसा पीछे नहीं दौड़ता है, उसको चाहिए एक अच्छा वर्किंग कंडीशन। हफ्ता में या महीना में कितना छुट्टी मेरा है, हॉलीडेज कितना है, मेरा वर्किंग आवर कितना टाइम है, एक्स्ट्रा मेरा काम कितना कितना फैसिलिटी है, वर्क फ्रॉम होम इमरजेंसी केस में है या नहीं है, ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए क्या बोल रहा है कि वर्किंग कंडीशन मेरा सही है या नहीं है, इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन एवॉइडेबल कॉज। अगर मेरा वर्किंग कंडीशन सही नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको अवॉइड करवाना पड़ेगा। अगर मैंने अवॉइड नहीं किया, लेबर छोड़ के चला जाएगा, लेबर टर्नओवर इंक्रीज हो जाएगा, सिंपल सी बात। नेक्स्ट वन इज वर्किंग कंडीशन ले लो, वेज सेटिस्फेक्शन ले लो, कंपैरिजन, ये छोड़ दो, कंपैरिजन बाद में पढ़ते। दोनों ब्रॉड कैटेगोरीली दो डिवाइड है। ये देखो पर्सनल कॉज, सुपर एनुएशन, डेथ, मैरिज, ये सब पर्सनल अंडर आएगा, और पर्सनल को अलग में भी हम लोग लिख सकते हैं। अनएवॉइडेबल का मतलब क्या है रे, दोस थिंग्स शुड नॉट बी एवॉइडेबल बाय टेकिंग एनी प्रिकॉशन। वो एम्प्लॉयर में हाथ में नहीं है, वो एम्प्लॉयर कितना भी चाहे अवॉइड नहीं कर पाएगा, तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको अनएवॉइडेबल कॉज बोलते हैं। सो कैन नॉट बी एवॉइडेबल, फर्स्ट वन इज पर्सनल कॉज। नेक्स्ट वन, पर्सनल मतलब क्या क्या आएगा रे, जैसे सोच लो उसको उसका क्लाइमेट सूट नहीं करता है, जम्मू कश्मीर में एक कंपनी है पूरा 12 मंथ क्या होता है उधर, ठंडी पड़ता है, बहुत कूल रहता है, तो मुझे वो पर्सनली चूज नहीं होता है, अच्छा नहीं लगता है, वह मेरा हेल्थ को सूट नहीं करता है, तो तभी मेरा क्या हो जाएगा, अनएवॉइडेबल। एम्प्लॉय चाहे तो क्लाइमेट चेंज नहीं कर पाएगा, समझ में आ रहा है। सो इट इज नोन एज अनएवॉइडेबल कॉज। नेक्स्ट वन इज सुपर एनुएशन, और इसको हम क्या बोलते हैं, रिटायरमेंट बोल सकते। मेरा प्रॉब्लम है, मैं जॉब छोड़ना चाहता हूँ, 60 ईयर हो गया, जॉब छोड़ना चाहता हूँ, सुपर एनुएशन और रिटायरमेंट, ये भी मेरा क्या आएगा, अनएवॉइडेबल। मेरा तो एज कम नहीं कर पाएगा मेरा एम्प्लॉय चाह के, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट वन इज डेथ, किसका डेथ हो गया, ये तो एम्प्लॉयर के हाथ में भी नहीं है, वो भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। मैरिज, ये भी पर्सनल चीज आता है, अगर ये मैरिज भी किसका हो गया, हस्बैंड वाइफ किधर बाहर जाना चाहते हैं और वाइफ को हस्बैंड के पास ही रहना पड़ेगा, ये सब कुछ चीज है, और हस्बैंड को वाइफ के पास रहना पड़ेगा, जो भी पंगा होगा ये तो एम्प्लॉयर में हाथ में नहीं है, नहीं कर पाएगा। तो ये जब सब चीज है, ऑल दीज थिंग्स आर अनएवॉइडेबल कॉज। समझ में आ रहा है लेबर टर्नओवर का क्या क्या प्रॉब्लम है। अच्छे से देखो, फिर ये दो कंडीशन जनरली एवॉइडेबल कॉज होता है, कि हम लोग चाहे तो इसको क्या कर पाएंगे, अवॉइड कर पाएंगे। अगर ये सब अवॉइड हो गया तो मेरा लेबर कहां से मुझे छोड़ के नहीं जाएगा, लेबर टर्नओवर नहीं बढ़ेगा। अगर ये सब चीज का प्रॉब्लम हो गया तो लेबर टर्नओवर क्या करना पड़ेगा, मुझे छोड़ के जाना पड़ेगा, प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। समझ में आ रहा है, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट वन देखो, पर्सनल कॉज अवॉइड नहीं कर पाऊंगा, सुपर एनुएशन रिटायरमेंट अवॉइड नहीं कर पाऊंगा, डेथ अवॉइड नहीं हो पाएगा, मैरिज अवॉइड नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है। सो दिस वन इज दी
कॉज ऑफ लेबर टर्नओवर। अभी हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसके बाद हमारा मेन इंपॉर्टेंट चीज है, दो चीज लेबर कॉस्ट में है, वन इज कैलकुलेशन ऑफ एलटीआर, सेकंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कैलकुलेशन ऑफ लेबर कॉस्ट, हमारा लेबर कॉस्ट क्या हुआ था। ओके, एक मिनट इसको नोट आउट करो, एक मिनट में हम लोग आते हैं। ओके, और दो चीज हम एवोइडेबल कंडीशन में देखते हैं, जनरली इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट वन इज वर्किंग कंडीशन हो गया, जॉब सिक्योरिटी, ये बहुत बड़ा चीज होता है, क्योंकि देखो जॉब सिक्योरिटी मतलब जब एक आदमी का जॉब फिक्स होता है कि तू मेरे साथ इतना तक रहेगा और इतना साल तक काम करेगा, कि इतना टाइम पे मैं तुझे नहीं निकालूंगा अगर तूने कुछ गलती नहीं किया, तो इसको हम बोलते हैं जॉब सिक्योरिटी। अप टू इच द जॉब सिक्योरिटी विल इंक्रीजेस, द लेबर विल इंक्रीज योर बिजनेस, और लेबर छोड़ के नहीं जाएगा क्योंकि उसका जॉब सिक्योरिटी है, उसको कोई निकाल नहीं पाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। जैसे सोच लो मैं किधर काम कर रहा हूँ, मेरा गारंटी नहीं है मैं आ जाऊंगा कल वो है तो मुझे निकाल देगा, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं, बा कुछ भी उसका रीजन हो तो वो मुझे निकाल पाएगा, तभी मैं अच्छे से काम क्यों करूं, मतलब मेरा दिल नहीं बोलेगा क्योंकि भाई मैं आज हूं कल नहीं होगा, इसका डेवलपमेंट करके मुझे क्या फायदा होने वाला है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जॉब सिक्योरिटी। एक कंपनी में अगर जॉब सिक्योरिटी नहीं है, अगर उसका कंपनी का कितना भी हो, कितना भी प्रॉब्लम हो जाए, उसके मुझे नहीं निकालेगा तो मुझे काम करने के लिए मन होगा। ये जॉब सिक्योरिटी अगर कंपनी के हाथ में होता है, ये एग्रीमेंट करवाएगा या कुछ भी करके उसको फिक्स करवाएगा कि तेरा इतना साल का जॉब है, तो भी क्या होगा, मेरा लेबर टर्नओवर कम होगा। समझ में आ रहा है? इसको फटाफट नोट आउट करते हैं एक सेकंड में। ओके, हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, फिर हम लोग क्या पढ़े तो डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट पढ़ेंगे एलटीआर कैलकुलेशन, लेबर टर्नओवर रेशियो कैसे कैलकुलेशन करना पड़ेगा और कैसे अवॉइड करना पड़ेगा, वो भी पढ़ेंगे, कैसे अवॉइड करना पड़ेगा, कैलकुलेशन एंड अवॉइड, कैसे अवॉइड करना पड़ेगा इसको। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कैलकुलेशन ऑफ लेबर कॉस्ट, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। लेबर कॉस्ट क्या होता है, कैसे कैलकुलेशन करना। मैंने जब दो चीज बताया था, मनी एंड मनी वर्थ, कितना मनी लगाए कितना मनी वर्थ लगाए, वो कैलकुलेशन भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट मोर मेन इज पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरी, ये भी बहुत चीज हम लोग इधर तीन चीज पढ़ेंगे। वन इज पीस रेट, पीस के हिसाब से, टाइम रेट, नेक्स्ट वन इसको हम क्या बोलते हैं, हम लोग इधर जो देखो जब भी ये बुक में आएगा ना, थोड़ा क्या क्या करके दिया होगा, इसको जनरली हम एडवांस फॉर्म बोलते हैं। क्या होता है एडवांस फॉर्म, इसको हम बोलते हैं फ्रिंज बेनिफिट टाइप का कुछ। क्या होता है हम लोग ये बाद में डिस्कशन करेंगे 5 मिनट में। पीस रेट मतलब पीस के हिसाब से पैसा देना पड़ेगा, टाइम रेट मतलब टाइम रेट के हिसाब से देना पड़ेगा। ये जो थर्ड होता है एडवांस फॉर्म ऑफ पेमेंट होता है, इसको हम एफिशिएंसी रेट भी बोल सकते हैं। इसका एक अलग का नाम है, इंसेंटिव प्लान बोल सकते हैं हम लोग, एफिशिएंसी रेट ये सही रहता है। और क्या बोल सकते हैं, इंसेंटिव प्लान। फर्स्ट वन इज पीस रेट, सेकंड वन इज टाइम रेट, थर्ड वन इज एडवांस, और इसको बोलते हैं एफिशिएंसी रेट, और बोलते हैं इंसेंटिव प्लान, कितना किसको इंसेंटिव मिलना चाहिए। सुनो, एफिशिएंसी रेट भी बोल सकते हो, नहीं तो इंसेंटिव प्लान इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब मोस्ट सैटिस्फैक्शन वर्ड। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम ये तीन चीज कवर, और जितना हो पा रहा है नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स हमको इतना कवर अप करना पड़ेगा लेबर कॉस्ट में। तो आज के क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े, पहला पढ़े लेबर कॉस्ट क्या होता है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एलटीआर क्या होता है, लेबर टर्नओवर रेशियो, ये क्यों इंक्रीज होता है, इंक्रीज होने से प्रॉब्लम क्या है, डायरेक्ट लेबर क्या है, इनडायरेक्ट लेबर क्या है, इतना चीज हम लोग आज डिस्कशन किए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, लेबर टर्नओवर पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।